بسم اللہ الرحمن الرحیم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم. السلام علیکم ناظرین، میں ہوں فراز ساگر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا آپ کا اپنا پروگرام فضیلت رمضان. اور السلام علیکم، میں ہوں اریبہ زارا، سید اریبہ زارا، فضیلت رمضان کی آپ کی پیاری سی ہوسٹ رویل چینل کی. اور فضیلت رمضان کا سحری کا آغاز ہم نے جو ایک ڈائریکٹلی تلاوت سے کیا ماشاءاللہ، جس میں ہمارے پرانے گیسٹ ماشاءاللہ اویلیبل ہیں. پرانے گیسٹ ہمارے دوبارہ انوائٹ ہیں، تو چندنا صاحب رائٹ چندنا صاحب سے ہم نے اسٹارٹنگ کیا تلاوت کا، ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت کی. اور اب کرتے ہیں آغاز پروگرام کا شروع سے. جی اب باقاعدہ پروگرام کا ہم آغاز کر رہے ہیں. اپنے مہمانوں کا تعارف کراتا چلوں. یہ مہمان ہمارے ایک بیچ میں پروگرام تھا اسٹارٹنگ کے اندر، اس پروگرام میں بھی ہمارے تقریباً یہی سارے مہمان تھے، اریبہ اور ہم ان کے میزبان تھے. ہمارے ساتھ موجود ہیں آج ایک مرتبہ پھر ایس کے اظہار صاحب، سینئر تجزیہ نگار. ان کے ساتھ ہمارے شاہ صاحب موجود ہیں. ان کے ساتھ برابر میں قربان علی چنا جو ہمارے بہت اچھے نعت خواں ہیں، وہ بھی موجود ہیں. تو اریبہ پروگرام کا اب ہم باقاعدہ آغاز کرتے ہیں، اور پروگرام کے آغاز میں ہم یہ چاہیں گے کہ ایک پیاری سی نعت جو ہے وہ ہم وہ تو آپ کی شروع سے ہی تمنا رہی ہاں تھی. بالکل پروگرام کے ہم سے آغاز کریں گے. جی شاہ صاحب ہمارے جو ہیں وہ حمد و نعت، حمد کے ساتھ نعت بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہمیں فضیلت رمضان میں ایک بار پھر موقع ملا اور سلسلہ جاری و ساری ہے اسی طرح سے، اور اس کی فضیلت ہم سب اٹھا رہے ہیں. فضیلت کے موقع پر اس پروگرام کی نسبت سے اور آج کے دن اور رمضان کے حوالے سے ایک حمد پڑھ رہا ہوں میں. اس کا آغاز کریں گے اور ہم سب مل کے پڑھیں گے. سب سے پہلے تو درود و سلام نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ نہ تھا زمانے کا اثر، نہ دوستوں پر پشیمانی، نگاہ فقیری نے بدل ڈالا تقصیر شاہ جہانی. تیرے کرم سے
चाहूं तेरे नाम ही को देखूं, तेरे नाम ही को चाहूं, पूजा करूं से मैं, पूजा करूं से मैं, माथे पे मैं सजाऊं ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। रब मुझे अमा दे, किस्मत मेरी जगा दे, या रब मुझे अमा दे, किस्मत मेरी जगा दे, औरों को रोशनी दे, औरों को रोशनी दे, रोशन दिया बना दे, या इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, मुहम्मद सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अलैका या रसूल अल्लाह, वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। ज़मीन ज़मा तुम्हारे लिए, मकीन मक्का तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, बने दो जहां तुम्हारे लिए, हमारे जहां तुम्हारे लिए, उठे भी वहां तुम्हारे लिए, सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, सबसे आला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। मैं ऐसा मिस कर रहा हूँ। चले चले माशाल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत अच्छा, अच्छे। एक मसला हमद पेश हुई है यहाँ और एक नात। तो ज़रा मैं बताती चलूँ, नात का मतलब होता है जिसमें नबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ हो रही हो, और हमद का मतलब होता है जिसमें अल्लाह पाक की तारीफ हो रही हो। तो माशाल्लाह यहाँ दोनों का ही जिक्र हुआ है, तो इस बात पर सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। एसके इज़हार साहब, आप काफ़ी देर हैरत है, बड़ी खामोशी से बैठे हुए, अभी तक आपसे कोई बातचीत हुई नहीं हमारी। अच्छा, एक चीज़ नाज़रीन मैं आपको बताते चलूँ कि हमारा ये फजीलत रमज़ान का प्रोग्राम हर साल की तरह, यानी कि पिछले साल भी और इस साल भी, हमने इस प्रोग्राम को जो हमने रखा है वो एक जर्नल प्रोग्राम हमने इसके अंदर रखा है। इसके अंदर हमारी 75% जो हमारी गुफ्तगू है वो तो हमारी दीन के हवाले से, फजीलत रमज़ान के हवाले से
اور اس کے بعد کچھ ایسی بھی گفتگو ہے جو دنیا کے حوالے سے دنیا کیا کر رہی ہے، روزے بھی رکھ رہے ہیں، سحری بھی کر رہے ہیں، اور اس میں وہ کس طریقے سے روزے رکھ رہے ہیں، کس طریقے سے سحری کر رہے ہیں، یہ بھی بہت ساری چیزیں ہیں۔ اس کے علاوہ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھتے۔ تو ہم شاہ صاحب سے تو ہم بات کریں گے، لیکن میں پہلے اظہار صاحب سے جو ہے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اظہار بھائی، جو لوگ ماشاءاللہ صحت یاب ہوتے ہیں اور ہٹے کٹے لوگ ہوتے ہیں، ان سے شہر کے اندر گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں، کھا رہے ہیں، پی رہے ہیں، سب وہ روزے نہیں رکھتے، تو ان کے لیے کیا آپ کے پاس کیا الفاظ ہیں، ان کو کس الفاظوں سے نوازتے ہیں جو روزے نہیں رکھتے؟ دیکھیں ایسے فوراً پہ قصداً جی ایسے موقع پہ اور اتنا مبارک مہینے کا موقع پہ اب میں ان سے گزارش ہی کر سکتا ہوں، اب خود بھی شعور سمجھدار ہے ماشاءاللہ، اب بینگ اے مسلم، بیست مسلمان کے وہ کلمہ گو بھی ہیں، نبی کی امتوں میں سے بھی ماشاءاللہ دعوے کرتے ہیں نا، ہم سے دعوے کرتے ہیں نبی کی امتوں میں سے ہیں، خوف خدا رکھتا ہوں میں، سب کچھ ہے، قرآن پڑھتا ہوں، اچھے برے کی تمیز مجھے ہے۔ تو جب رمضان مبارک کی آمد ہوتی ہے، جب ہم استقبال کرتے ہیں، تو پھر 30 دن کا روزہ ہم کیوں نہ رکھ پاتے ہیں؟ یہی روزہ احساس لاتا ہے ساگر صاحب، عریبہ صاحبہ، یہی روزہ احساس دلاتا ہے کہ غریب جو لوگ بھوک افلاس میں رہتے ہیں، کبھی بچے، معصوم بچے یا مرد، خواتین، بوڑھے، جوان، وہ احساس دلاتے ہیں بھوک ہے کیا چیز۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرض کیا ہے، سنت اور نفل نے رکھا ہے، روزہ فرض کیا ہے کہ جو صحت مند ہے وہ روزہ کو رکھے، جو بیمار ہے وہ بعد رکھے۔ اللہ نے قرآن میں نے پہلے کہا تھا کہ اللہ کرتے 3 دن میں کوئی سختی نہیں ہے، کوئی سختی نہیں ہے کہ نہیں ایسا کرنا، کوئی جبر ہی نہیں ہے، آسانیاں پیدا کی اللہ تعالیٰ نے۔ اگر آپ صحت مند نہیں ہو، بیمار ہو، تو نماز کی بھی آپ کو مہلت دی جاتی ہے، روز رکھنے کی مہلت دیا تھا، آپ نفل رکھ لینا روزہ کے بعد۔ اچھا اظہار صاحب، ہمارے ملک کے اندر خاص طور پر پاکستان کی شہر، سب سے بڑا شہر انٹرنیشنل کراچی شہر ہے، اس کے اندر ایک بڑی پرابلمس ہے۔ ہم تقریباً ہم اوورآل پورے ملک کی بات کرتے ہیں تو پورے ملک میں یہ معاملات آ جاتے ہیں کہ جب خاص طور پر رمضان المبارک کا مہینہ آتا ہے، جب کیونکہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے تو اس کے اندر رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ بھی جتنے بھی تہوار آتے ہیں ان کو بہت عقیدت و احترام سے منایا جاتا ہے۔ ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہندوستان میں اگر ہم جا رہے ہیں، برابر میں جو ہمارا سب سے بڑا دشمن ملک ہے، ہم اگر وہاں جا رہے ہیں تو وہاں پر 1 مہینے پہلے، رمضان سے 1 ماہ پہلے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ جتنی جو بھی اجناس ہے، جو چیزیں خرید و فروخت کی جو رمضان میں استعمال ہو رہی ہیں، ان کی قیمتیں آدھی ہو جاتی ہیں، اور ہمارے ملک کے اندر وہی قیمتیں ڈبل ہو جاتی ہیں۔ تو کیا کہیں گے اس بارے میں آپ؟ دیکھیں یہاں تو ہم شرمندہ ہوں گے، پوری قوم شرمندہ ہوگی، اور میں تو حکمرانوں سے کہوں گا کہ وہ شرمندہ نہیں ہوتے، حکمران شرمندہ نہیں ہوتے، جو انہیں شرمندہ ہونا چاہیے، انہیں اقدام اٹھانے چاہیے بیفور رمضان کے آنے سے پہلے کوئی ایسا سسٹم بنا لے کہ بھائی اسلامی ملک، اس کا نام ہے جمہوریہ پاکستان ہے، ٹھیک ہے، پاکستان کا مطلب کیا ہے؟ کہتے ہیں لوگ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ جب پاکستان کا مطلب بھی سمجھ رہے ہیں، ترجمہ بھی کر رہے ہیں، وہ پاکستان کا ڈنڈے بھی استعمال کر رہے ہیں، یہ کیا وجہ کہ وہ ڈنڈے کو ان ظالموں پر استعمال نہیں کر رہی حکومت، ان جو گراں فروش جو مہنگائی کر دیتی ہے رمضان کے آمد کے مزہ سستی کرنے کی یہ چیز، کھانے پینے کی خوردنی اشیاء ہوتی ہے، روزمرہ زندگی کی جو کھانے پینے کی اشیاء ہوتی ہیں، دودھ ہے، سوئیاں ہے، ایک چھوٹی چھوٹی ہر چیز، فروٹ لے لیں، گوشت لے لیں، فروٹ لے لیں، سبزی لے لیں، یہ تو لوگوں کو یوں پیش کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے تم کہ یہ جتنا دو گے اس کا 10 گنا میں تمہیں نوازوں گا، دوں گا، میں خیر برکت دوں گا، خیر کا مہینہ برکتوں کا مہینہ ہے۔ لیکن کیا حکمران سمجھدار نہیں ہے؟ کیا حکمران مسلمان نہیں ہے؟ کیا انہوں نے کلمہ نہیں پڑھی، قرآن نہیں پڑھا ہے، ترجمہ نہیں پڑھا ہے؟ وہ کیوں ایسا نہیں کرتے؟ کیا ملک ہمارا کنگلا ہے؟ ایسا نہیں ہے۔ جو لوگ دعوے کرتے حکمران سرفراز صاحب کہ ہمارا ملک مطلب پھلتا پھولتا ہے، ترقی کر رہا ہے بہت، معاشی طور سے بھی، ایٹمی طور سے بھی، ہر اعتبار سے بھی، امن و امان بھی ٹھیک ہے، لیکن ٹھیک نہیں ہے۔ یہ سب منافقت ہے، جھوٹ پر مبنی ہے، خود کو دھوکہ دینا، اپنے آپ کو دینا، عوام کو دھوکہ دینا، 25 کروڑ عوام پاکستان کو دھوکہ دینا، ایسا نہیں ہوتا۔ اگر واقعی میں خوف خدا دل میں ہے، رمضان مبارک کی آمد ہونے والی ہے، تو اب سسٹم بنا لیا جائے۔ سڑکوں کا حال دیکھ لیں آپ، روزدار آتے ہیں آفس سے۔ بالکل صحیح کہہ رہے ہیں۔ دیکھیں اظہار صاحب کی بات صولیان درست ہے، کیونکہ سڑکوں کی حالت بھی خراب ہے اور ہمارے حکمرانوں کی بھی حالت بہت خراب ہے، لیکن ابھی ہم اس وقت ہماری حالت خراب ہو رہی ہے کیونکہ ایک شارٹ بریک کی طرف ہم جا رہے ہیں۔ شارٹ بریک سے واپس آتے ہیں، پھر ہم اس سلسلے کو یہیں سے جوڑیں گے ایک شارٹ بریک کے بعد۔ دیکھتے رہیں۔ انکل ایک کرکرے۔ نہیں کرکرے۔ کرکرے ہی کیوں؟
सीन कुछ ऐसा है कि कुरकुरे का कॉर्न से बना क्रंची कड़ाका मिर्ची मसाला मेरे टेस्ट बड्स को पीक मेन कैरेक्टर एनर्जी देता है। लेजेंड स्पाइसी मसाला फ्लेवर ट्रिप मैक्स्ड आउट। और जब आप बोले कुरकुरे का सिग्नेचर गोल्ड फ्लेवर सर्विंग ओनली विंस, और मैं अपने कड़ाका एरा में क्रेजी। ऐਵੇਂ तो नहीं ना फिर। मसालेदार तड़के, कड़क क्रंच करके सब हो गई क्रेजी फॉर कुरकुरे। भूल ये हुई है मुझसे, थोड़ा सा कुछ दिल में रह गया। क्या करो? सेट करो खास चाय बना के तुम्हारा मूड। समझते हैं एक दूसरे को, इसीलिए बने हैं एक दूसरे के लिए। जैसे चाय को समझे सिर्फ नेस्ले एवरीडे। फ्रॉम नेस्ले। वेलकम बैक, दोबारा खुशामदीद आपको फजीलत रमज़ान में। और माशाल्लाह जो कि हमारा लास्ट सेगमेंट चल रहा था, सेगमेंट किसके हवाले से? फजीलत रमज़ान के हवाले से। तो माशाल्लाह SK साहब ने तो पूरा कर दिया। ठीक है, अब हम चलते हैं शन्ना साहब की तरफ। अब इनसे मालूमात करते हैं कि ये भाई क्या कहेंगे रमज़ान के बारे में। और रमज़ान के अलावा हम रमज़ान के रिलेटेड भी कोई बात कर सकते हैं, जैसे कि आजकल के हालात चल रहे हैं। देखिए, रमज़ान और ईद, गरीब हो अमीर, सबका हक है, सब मनाएं। लेकिन कहीं कहीं नाइंसाफ़ी हो रही, जैसे हमारा पहला टॉपिक चल रहा था, माशाल्लाह सागिर साहब ने हमारा कहा कि इस रमज़ान में हर ममालिकों में मुसलमानों के लिए डिस्काउंट बन जाता है, मतलब कम हो जाता है। लेकिन वाहिद हमारा मुल्क, हमारा ख़ुद का अपना इस्लामिक मुल्क पाकिस्तान में ऐसा होता है कि यहाँ कीमत बढ़ जाती है। यहाँ लोग अपनी मर्ज़ी से कुछ खा नहीं सकते। जो वाइट पोस्ट लोग हैं वो तो माशाल्लाह कर लेते हैं अफोर्ड, लेकिन जो बेचारे गरीब हैं वो तो बस सिर्फ शक्ल देखते हैं। तो इस वजह से भी हमारा ज़्यादा दुख है, और इस बारे में तो हम बात कर चुके हैं। लेकिन मैं ये कहूँगी कि इस बारे में आप बताएं कि इसका सॉल्यूशन क्या है। इसका कोई तो सॉल्यूशन हो कि हुकूमत की गलती है या जो सेल आउट करते हैं, सेल वर्कर होते हैं, उनकी गलती है। आप मुझे ये बता दें ज़रा। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन नबिय्यिल उम्मी व अला आलिहि व सहबिहि व बारिक वसल्लम। मैं कुर्बान अली चन्ना, सबसे पहले तो अरीबा साहिबा आपका और सागर साहब का और रॉयल न्यूज़ का तहे दिल से मशकूर हूँ कि हर साल अल्हम्दुलिल्लाह ये हमें शरफ़ देते हैं, मौका देते हैं। और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह बारहा, पहले भी एक मरतबा हमें ये इनायत हुई और आज फिर दोबारा आपने हमें मदऊ किया। सबसे पहले तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बात हो रही है रमज़ान के रोज़ों की और रमज़ान के महंगाई की। तो बात ये है कि हमारे मुल्क में अगर हम बात करें तो मेरे ख़्याल में हम, अल्लाह माफ़ करे, हमारी जो कंपनीज़ होती हैं, जो हमारे बिजनेसमैन होते हैं, उनको जैसा कि ऐसा लग रहा होता है यही महीना जो है आपको जो है कमाने के लिए मिला है। अब आप 4 दिन पहले अगर केले खरीदेंगे तो आपको 60-70 रुपये दर्जन मिलेगा, वही केले आपको 150 रुपये दर्जन अभी मिलेगा। जो कीनू आपको आम दिनों में 100-150 रुपये दर्जन मिल रहा था, वो अभी आपको 300-400 रुपये। हर चीज डबल। गरीब कहाँ जाएगा? तो इसके लिए मैं रॉयल न्यूज़ के इस प्लेटफार्म से मैं तमाम बिजनेसमैन से ये गुजारिश करूँगा कि खुदारा अपना मुनाफा ज़रूर लें, लेकिन मुनाफा कम लें, कि ऐसे लोग भी उससे रोज़ा इफ्तार कर सकें जिनके पास इफ्तारी के लिए कुछ नहीं होता। बिल्कुल। तो मेरा आपके इस चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू तमाम बिजनेसमैन से जो हमारा फ्रूट बेच रहे होते हैं, जो अशराए खुरदोश की इस्तेमाल करते हैं, जो ये कारोबार करते हैं, उन सब से मेरी ये गुजारिश है कि खुदारा लोगों का कुछ ख्याल रखें। और महंगाई, अब ये नहीं कह रहे आप मुनाफा ना लें, लेकिन इतना प्रॉफिट जो डबल ट्रिपल हो जाता है ये ना लें। बाकी रही बात ये कि अल्लाह के पास तो हिसाब है। और हमारे यहाँ जो है वो पिछले दिनों एक मैं व्हाट्सएप पे चीज़ पढ़ रहा था, एक बड़ी बेहतरीन वीडियो आई थी। उस वीडियो में एक क्लिप, बड़ा अच्छा सबक था कि वो पूछ रहा था कि जो है वो एक वो आ रहा है और वो आ रही है। तो एक मज़ाक वीडियो बनी हुई थी, उन्होंने बनाई थी, एक मजाक बनाया हुआ था बिजनेसमैन के समझाने के लिए। तो वो खुश हो रहे थे बिजनेसमैन के, वो आ रहा है, कौन आ रहा है? रमज़ान आ रहा है, और उसके साथ वो आ रही है, मैं महंगाई आ रही है। तो ये इंतहाई शर्मनाक जो है बात है कि रमज़ान आते ही महंगाई का जो है वो ज़िलज़ला टूट पड़ता है। और गरीब लोग क्या करें?
जो दिहाड़ी कमाने वाले मजदूर आदमी है, वो अपना घर बसर कैसे करेंगे, जिसके 4-5 ईद बच्चे। की तैयारियां कैसे करेंगे? ईद की तैयारी तो दूर की बात है, जब आपके घर पे दस्तरखान सजता है तो छोटे मासूम बच्चे होते हैं, जब अहले मोहल्ला चीजें लेके मतलब ईद के लिए कुछ नहीं बचेगा ना, सब रमजान में खर्च हो जाएगा। हदीस मुबारक का भी यही हमें दस मिलता है ना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो ये है कि अपनी जो है ना घर में कोई चीज लाओ तो अहले मोहल्ला को दो, पड़ोस में किसी गरीब को दो, अगर चीजें कम हैं तो उनके छिलके वगैरह। इसलिए अल्लाह पाक ने ज़कात का रखा, फितरे का रखा है कि आप फितरा गरीबों को दें। रमजान में फितरे का जो है ज़कात का कि वो भी आपसे ईद कर सके, और फितरा आप कोशिश करें रमजान से पहले अदा करें, ताकि जो है जो यतीम हैं, बेवा हैं, या जो हमारे अड़ोस पड़ोस में जितने भी, खास तौर पे हम इर्द गिर्द में देखें कि हमारे दस्तरखान पे तो 4 चीज़ें पड़ी हैं, क्या हमारे पड़ोस में जो बेवा है या कोई यतीम बच्चे हैं, कोई गरीब है, अच्छा कुछ सफ़ेद पोश होते हैं जो किसी से मांगते भी नहीं है सागर साहब, सही बात है, वो अपने इतनी मजबूर होते हैं कि वो कह नहीं सकते कि हमारे पास कुछ नहीं है, तो हमें ऐसी चीज़ों को देखना चाहिए, बगैर मांगे उनको दे देना चाहिए, या फिर हमें मस्जिदों में देना चाहिए। मस्जिदों के जो इमाम साहब हैं, जो मुअज्जिन हैं, और जिनकी तनख्वाहें बहुत महदूद होती हैं, अगर देखा जाए इमाम साहब की जो तनख्वाह होती है वो बहुत महदूद होती है, मुअज्जिन साहब की तनख्वाह महदूद। हमारी जो तनख्वाहें होती हैं, हम उनसे अपना घर चला रहे होते हैं, हम अपने कारोबार करते हैं, उनसे घर चला रहे हैं, और हम उनको क्या देते हैं? ऐसा ये बिल्कुल। तो ये मेरा इस चैनल के थ्रू, इस प्लेटफॉर्म के थ्रू आपसे ये भी मैसेज है कि उलमाए किराम का, मस्जिद के मुअज्जिन का, मस्जिद के इमाम साहब का ख्याल रखें, जो हमें तरावी पढ़ाएंगे उनका ख्याल रखें, और उनके घरों पे भी खुशियाँ हों, उनके बच्चे भी अच्छे कपड़े पहने, उनकी भी ज़रूरत पूरी करें, मेरा यही मैसेज हो। हमारे असल में होता ये है कि हम जिस महल्ले में रहते हैं, जिस हम जगह, पूरे शहर की बात तो हम बाद में करते हैं, अगर हम पहले हम अपने महल्ले की, अपने इलाके की बात करते हैं, तो हमसे ज्यादा वहाँ कोई नहीं जानता कि इसमें कौन से घर ऐसा है जिसके अंदर परेशानी चल रही है, या सफेद पोश लोग रहते हैं। तो अगर हम सब मिलकर, पूरे कराची के, पूरे पाकिस्तान के लोग मिलकर अपने महल्ले, अपने इलाके, अपने एरियाज के अंदर ही खाली ये चीजें देख लें, तो मैं कहता हूँ कि शायद सफेद पोश जो है वो भूख से नहीं मरेगा, खुदकुशी नहीं करेगा, उनके बच्चे फाकों से नहीं मरेंगे। क्या बोलती है अरीबा? दूसरे मुल्कों में देखें ना आप, जो है ना ज़कात का जो रेशियो है, अगर किसी और मुल्क में, सऊदी में, किसी में किसी को ज़कात मिलती है, हमने सुना है अगले साल वो इतना मालदार हो जाता है, खुद ज़कात देने के काबिल हो जाता है। देखें अब आप, और यहाँ पे हमारे मुल्क में आप खुद अंदाजा कर सकते हैं। लुकमा ये दूंगा इंटरेप करते हुए, मैं कहना चाहूँगा कि सफ़ेद पोशी की बात हो रही है जी, जो उनका कोई गुजर बसर नहीं है जी, ठीक है ना, मिडिल क्लास के हैं लेकिन सफ़ेद पोशों का नहीं है। तो सफ़ेद पोश क्या करते हैं बेचारे, खामोशी से इज्जत बचाने के लिए लोग पोश हो जाते हैं, बिल्कुल उनको कोई देखे ही नहीं, बिल्कुल जिससे मांगे वो अल्लाह रोपोश होके अल्लाह के ज़ात से मांगते हैं, अल्लाह ताला उनकी भी ज़िंदगी और टाइम निकाल देता है, और मिडिल क्लास के भी, और अमीर कभी लोग उनका टाइम निकाल देता है। ये खुदाबंद जो कह रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है कि मैंने रमज़ान मुबारक इसलिए कुरान नाज़िल किया है क्योंकि पढ़ो, समझो, मिस्कीन का, गरीबों का ख्याल रखो, लेकिन वो ख्याल को रखने वाला नहीं है। अजनास घर के बाहर फेंका होता है, कचरेदान में होते हैं, ठीक है, लेकिन गरीबों को मौसर नहीं है, कोई देते नहीं है। इतना लोग जो है अफ्तारी करते हैं, यकीन करें हमने खुद देखा, इतना लोग जाया कर देते हैं, फेंक देते हैं। यार क्यों फेंक रहे हो आप? हालांकि रमजान के ऐसा महीना होता है, इसके अंदर ज्यादातर लोग मांगने वाले जो गरीब लोग होते हैं, जो बहुत ज्यादा नीचे के लोग होते हैं, वो हर घर में जाते हैं, मांगते भी हैं, तो उनको दे दो यार, आप क्यों जाया करो? सागर से चीज़ आ गया अरीबा साहबा, मैं कौम को बता दूं मैं कि जिनके पास करोड़ों का मकान, करोड़ों की गाड़ियां चमकती भी, और एक मांगने वाली या मांगने वाला बेचारा आ गया, ऐसे हाथ फैलाया, जो शायर कहते हैं भिखारी कह रहे हैं, मांगने वाला के जो भी नाम दे रहे हैं आप, उसको 10 रुपया वॉलेट निकलने था, 10 रुपया उस वॉलेट से जो करोड़ रुपया गाड़ी पे बैठा हुआ है उसे निकल के नहीं दे रहा है, और ये वो सफाई करने वाला आता है उसको देते नहीं लोग, और आगे जाने का बाद वो पैसा बेहतर इस्तेमाल करते हैं, इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल, वो उस टाइम धुतकार देते हैं, वो उन लोगों को, फकीरों को, उन गरीबों को धुतकार देते हैं। हमने जो लोग गाड़ियों में बैठे हुए, गाड़ी चलाने में खुदा का खौफ लेकर आए अपने दिल के अंदर, क्योंकि आप सब हम मुसलमानों की तो हम बात ही नहीं करते हैं, हम इंसानियत की बात करते हैं। अगर इंसानियत, आप लोगों के अंदर इंसानियत है, हमारे अंदर अगर इंसानियत है, तो हम इस तरह की शर्मनाक वाकयात से बहुत दूर रहेंगे। एक शॉर्ट ब्रेक की तरफ हम जा रहे हैं, शॉर्ट ब्रेक से वापस आते हैं, फिर आपका एक प्रोग्राम का सिलसिला यहीं से शुरू करेंगे, एक शॉर्ट ब्रेक के। तुम बड़ा गुनगुना रहे हो। इसकी सफाई के गुण गा रहे हैं। पहला गुण लीमू, जो कपड़ों की गहराई में जाके मैल खींच निकाले। दूसरा गुण इसकी खुशबू, जो दे सफाई का महकता एहसास। अब से साथ में गुनगुनाएंगे। सामने इतना जबरदस्त डिजाइनर बुटीक बन गया है यार, अब हमारा बुटीक बंद।
देखो हमारे शाइनी बाल क्या कह रहे हैं, इनकी तरह हम भी खूब शाइन करेंगे, चाहे धूप हो या पसीना। सनसिल्क ब्लैक शाइन विटामिन ई के साथ दे बालों को ग्लॉसी कोटिंग और ग्लास शाइन। आपकी बुटीक हर तरफ शाइन कर रही है, खूब शाइन करेंगे, ग्लास शाइन करेंगे। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक, खुशामदीद आपको दोबारा फजीलत रमज़ान में एक बार फिर। और थैंक यू सो मच कि आप लोग हमारा ये चैनल, हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं। आप सबका प्यार, आप सबकी मोहब्बत और आप सबकी इज़्ज़त हमें मिल रही है। और इन सब हमारे मेहमानों का भी बहुत शुक्रिया जो आज हमारे साथ हैं, जिनके बारे में हमें बहुत कुछ सुनने को मिला। अच्छा जी, हाँ जी, सागर साहब क्या कर रहे हो? अरीबा देखो, रोज़ा तो नहीं लग रहा है ना तुम्हें, क्योंकि मैं तुम्हारी कोई चीज़ है वो पी रहा हूँ, मैं रोज़ा तो नहीं लग रहा तुमको? देखिए, पहली बात तो कि ये सेहरी प्रोग्राम चल रहा है, रोज़ा ना भी आपका ही ना मेरा है, लेकिन बिल्कुल ये सहरी का प्रोग्राम है हमारा। हाँ, ये एक बात तो अभी रोज़ा फिलहाल किसी का नहीं है, लेकिन हाँ अक्सर ऐसा होता है कि भाई आपके जब रोज़ा होता है तो काफ़ी मजाक में, मस्ती में लोग ऐसा करते हैं, आपके सामने कुछ खा रहे होते हैं, कुछ पी रहे होते हैं, चिढ़ा रहे होते हैं, जबकि उनका अगर रोज़ा नहीं होता तो चिढ़ा रहे होते हैं कि भाई देखो तुम्हारा रोज़ा है, हम खा रहे हैं, भूख लग रही होगी, हम ऐसी ऐसी चीज़ें खा रहे हैं दिन में, खास तौर पर। हाँ, तो इसके बारे में बड़ा खूबसूरत एक बयान में पेश करना चाहती हूँ कि एक वाक़या मैं आप लोगों को डिस्क्राइब करना चाहती हूँ कि एक नॉन मुस्लिम थे जो इंतकाल कर गए थे तो उनको फ़रिश्ते जब अल्लाह की राह में पेश किया तो अल्लाह ताला ने हुक्म दिया कि इसे जन्नत में भेजा जाए, जबकि वो नॉन मुस्लिम था। और फरिश्तों ने कहा कि ये तो नॉन मुस्लिम है, ये तो हिंदू है, ये मतलब किस हक़ से जन्नत में जाएंगे? तो फिर अल्लाह पाक ने, और जो था बंदा, तो उन्होंने फरमाया, अल्लाह पाक ने फरमाया कि ये रमज़ान शरीफ के महीने में इनका जो बेटा था तो वो मुसलमानों के सामने खुलेआम खा पी रहा था। यानी कि मुसलमानों का रोज़ा चलता है, रमज़ान के महीने में बड़ा एहतराम होता है, जिनका रोज़ा भी नहीं होता तो वो भी हाइडिंग खाते हैं, हाइडिंग फूड करते हैं। लेकिन नॉन मुस्लिम जो थे शख्स जिनका इंतकाल हो गया था, जिनको अल्लाह ताला ने जन्नत में दाखिल करने का हुक्म दिया, उनकी सिर्फ एक छोटी नेकी की वजह से उन्हें जन्नत नसीब हुई। क्या जन्नत नसीब हुई? क्यों? क्योंकि उन्होंने अपने बेटे को रमज़ान शरीफ महीने में माशाल्लाह उन्होंने बच्चे को डांटा, सख्ती से पेश आए कि बेटा मुसलमानों का अदब करो, उनका रोज़ा है, उनके सामने ना ही खाओ पियो। तो उसकी एक छोटी सी नेकी उसे जन्नत में ले गई, जबकि वो नॉन मुस्लिम था। तो है ना हमारा रब्बुल कायनात, जो दो जहानी कहेंगे, पूरी कायनात को चलाने वाला, जिसकी मर्ज़ी से एक पत्ता भी नहीं हिलता, बस वो अपनी बंदों की तौबा चाहता है, तौबा मांगता है, जबकि उसके पास उसकी इबादत करने के लिए लोगों की कमी नहीं है। इस ज़मीन पे, इस दुनिया में बहुत सारे मखलूक़ात हैं जो इनविजिबल भी हैं, जो ना दिखने वाले, वो भी इबादत करते हैं। तो अल्लाह ताला की इबादत को कमी नहीं है, अल्लाह ताला किसी की इबादत इंसानों के लगा नहीं है। लेकिन क्या अल्लाह चाहता है कि मेरा इंसान जो सिर्फ एक बार आए और दिल से तौबा करे, मैं उसकी तौबा कबूल फरमाऊँगा। तो एक नेकी से वो शख्स जन्नत में गया, और हम इतने गुनाहगार कि हम अपनी दुआएं नहीं मांगते दिल से और तौबा नहीं करते। नहीं, अभी भी वक्त है, आप लोग भी जरा देख लें, इतनी सी छोटी सी नेकी है, ये तो कुछ भी नहीं है ना। आपने अपने बेटे को कह दिया कि इंसान बनो और अदब करो, एहतराम करो, रोज़दार का एहतराम करो, ये कोई एक मामूली सी बात है, लेकिन वो आपको जन्नत में लेके जा रही है, वो आपको जन्नत में लेके जा रही है। ये तो एक छोटी सी बात है। अगर हम अल्लाह ताला के जो फरमाए हुए जो रूल्स हैं, जो उसूल्स हैं, जो उनके मोती हैं, जो हम उन पर अमल करें तो हम कहाँ खड़े हैं? है बात है, कहते हैं ना, हर नमाजी जन्नती नहीं होता और हर जहन्नमी दोज़खी नहीं होता, हर गुनहगार दोज़खी नहीं होता, सॉरी। तो वाकई हर नमाजी जन्नती नहीं होता और हर गुनहगार जहन्नमी नहीं होता। किसी की क्या छोटी सी नेकी आपको जन्नत में ले जाए, कोई नहीं बता सकता। अलीबा का बात को आगे बढ़ाते हुए, अलीबा से पहले कि मुझे सवाल करे, मुझे पता है मेरे तरफ आएंगे वो, उससे पहले मैंने खुद ही टाइम के नज़ारे को देखते कि मुझे भी हिदायत ये होगी प्रोड्यूसर की तरफ से कि टाइम कम है या बिल्कुल सहरी का तैयारी है। तो अलीबा ये कहा कि खालिक कायनात जो दुनिया को बनाने वाला, तो अल्लाह कह रहा है कि मैं खालिक कायनात हूँ, मैं रब्बुल आलमीन हूँ, मैं पूरा रब का मालिक हूँ। कहीं लिखा कि मैं मुसलमान का मालिक हूँ, मैं क्रिश्चियन का मालिक हूँ, रब्बुल आलमीन, पूरा मैं रब का मालिक हूँ। और अपने महबूब को नाम दिया कि यह रहमतुल आलमीन है, रहमतुल आलमीन है, ऊपर रहमत
वो पूरा आलम के लिए रहमत बनकर मैंने भेजा है उनको। तो ये कितना कम्बिनेशन इतनी अच्छी, सागर साहब, अरीबा साहबा और हमारे मोअज़्ज़िज़ मेरे मेहमान शाह साहब और चन्ना साहब, अल्लाह कुरान फरमा रहा है कि मैं रब्बुल आलमीन हूँ और मेरा महबूब रहमतुल आलमीन है। बेशक सर, बेशक। ठीक है, और ये भी फरमा दिया अल्लाह ताला कि तुम जिंदगी भर रगड़ते रहो सर को, पेशानी को, नमाज पे या तहज्जुद वक्त, कुछ वक्त में अल्लाह इला विर्द करते रहो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, तुम मुसलमान नहीं होगे। जब तक कलमा मुकम्मल होगा, मेरा महबूब का नाम लो कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, तो कलमा मुकम्मल होगा, मैं कबूल करूंगा। ये अल्लाह की शान है। बिल्कुल, अल्लाह महबूब का मतलब होता है आशिक माशूक वाला सिलसिला है कि जब तक मेरे महबूब का नाम नहीं लोगे, जब तक कलमा मुकम्मल नहीं है, ये चीज बात की बात कौन बताएगा, कौन देखेगा, ये कौन संभालेगा? शाह साहब से हम एक छोटी सी बात हम पूछना चाह रहे हैं कि शाह साहब माशाल्लाह से एक पीर तरीक़त हैं और इनका तकरीबन ये जो हमारे दुनिया में जो गुजरे, जो औलिया कराम गुजरे, बुजुर्गान दीन गुजरे और पीर व मुर्शिद गुजरे और जो मौजूद हैं, ये सब इनको बहुत अच्छी तरीके से हमारे शाह साहब जो हैं वो समझते भी हैं और जानते भी हैं। तो शाह साहब ये बताइएगा कि पीर व मुर्शिद, जो पीर व मुर्शिद होते हैं, उनका एक सिलसिला जहाँ से भी चला आ रहा है, जैसे गौस पाक की एक गली चली आ रही है, या इसके अलावा बहुत से चिश्तियाँ हैं, कादरियाँ हैं, ये सिलसिले चले आ रहे हैं, है ना, ये सारे सिलसिले चले आ रहे हैं। इन सिलसिलों के अंदर आप क्या समझते हैं कि आप हमारे आकाए दो आलम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को, इन लोगों को जो उनकी अमल पर, यानी कि उनके अब जो उनकी बातचीत थी, जो उनका दर्द था, उस पर ज़्यादातर कौन अमल करता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माशाल्लाह से आज की गुफ्तगू इतनी शानदार हो रही है कि इस पर ऐसे ही है कि मैं फूल के ऊपर जो है किसी आर्टिफिशियल खुशबू को छिड़काव कर दूं। हमारे जो सागर साहब आप हैं और अरीबा साहिबा और इसके साहब चन्ना साहब हैं, बड़ी खूबसूरत गुफ्तगू कर रहे हैं। और मैं इस वक्त तक तो मैं सोच में मुब्तला रहा हूँ कि जब मेरी बारी आएगी तो मैं कहूँगा क्या, कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ ख़त्म करूँ, लेकिन बात ख़त्म नहीं होती। बात हो रही है औलिया किराम की। तो बात दरअसल ये है कि रमज़ानुल मुबारक तो हमें तोहफे में दिया गया, किसी उम्मत को ये मैसर ही नहीं और किसी उम्मत को ये फजीलत है भी नहीं जब तक कि हमारे नबी का कलमा वो ना पढ़ ले। इस रमज़ान की फजीलत, फयूज़ व बरक़ात वो हासिल नहीं कर सकते। बात दरअसल एक से और भी है कि इस पर औलिया किराम की शान ये है कि ये तो रोज़ों में अपनी ज़िंदगी गुजारते थे, ठीक है ना। तो इनका तो पता ही नहीं चलता था। ये औलिया किराम की शान रही है कि वो हर वक्त रोज़े में, नफिल रोज़ा, फ़र्ज़ रोज़ा, और फ़र्ज़ तो मामला ऐसा है कि फ़र्ज़ तो आपको पता भी नहीं चलेगा फ़र्ज़ किस कदर अदा कर रहे हैं। और क्या कहते हैं, नफिल, उनकी पूरी ज़िंदगी सेकंड और मिनट को आप ना नफिल में जोड़ लीजिए। ऐसा कोई भी वली नहीं होगा जिसने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से इनकार कर सकता है। इनकार तो छोड़िए, उसको हर कदम ब कदम उसको निभाते हैं वो लोग। फिर जा करके नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इनायत होती है, फिर अल्लाह की इनायत होती है। पहले अल्लाह की इनायत नहीं होगी, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नज़र पड़ी, आपका काम हो गया बेशक, ठीक है ना। बिल्कुल। तो वो चाहे गौस पाक रज़ी अल्लाह ताला, गरीब नवाज ऐसी हस्ती हमारे हिंदुस्तान का नक्शा बदल दिया। मुसलमानों की हालत इतनी बदतर थी कि बताना और समझाना ये फिर घंटों और महीनों का काम है। 56 साल यानी 54 साल की उम्र तक तो उन्होंने सिर्फ तालीम हासिल किया अपने पीरो मुर्शिद से। ये उम्र देखें। फिर जा करके उनको पीरो मुर्शिद खाने काबा लेकर के जाते हैं, फिर वहाँ से उनको जो है हिदायत मिलती है, फिर वो बर्रे सगीर के लिए रवाना हो जाते हैं। और इन तमाम चीज़ों में उनकी रोज़ा, नमाज यानी नफली इबादत इस कदर है कि हमारे तो सोच और समझ में नहीं।
हम ना करने के लायक हैं, बल्कि उनकी फजीलत और उनके दिए हुए से अगर हम उनके दरबार पे हाजिर होते हैं ना, हम पर एक नजर उनकी पड़ गई, हमारा काम हो गया। बेशक हमें वो सब कुछ मिल गया जिन्होंने उन्हें 50 साल 100 साल में उन्होंने अदा किए। उनकी एक नजर ने हमें इस काबिल बना दिया कि हम लोगों को फयूज़ व बरक़ात पहुंचा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। बड़ी अच्छी बातचीत हुई और बहुत ज़्यादा, क्योंकि शाह साहब माशाल्लाह एक बहुत ही एक बड़े आलिम हैं और बहुत चीज़ों को समझते हैं, पीर तरीक़त हैं, हर चीज़ों को समझते हैं। चन्ना साहब भी माशाल्लाह बहुत सोच बूझ रखते हैं, इज़हार साहब भी बहुत ज़्यादा। अभी असल में अब प्रोग्राम का भी वक्त क्योंकि ख़त्म होने वाला है और साथ साथ जो है हमारे शहरी का वक्त शुरू हो गया है और हमारे जो नुमाइंदे हैं, हमारे एंकर पर्सन लाला असद, उनसे हम आज पूछते हैं कि वो आज कहाँ पे सहरी कर रहे हैं और किससे सहरी करा रहे हैं। आप लोग नाज़रीन इनको देखते रहिएगा। और अब मुझे और हमारी होस्ट अरीबा ज़ारा को इजाज़त दीजिए। बहुत शुक्रिया, आप लोग दोबारा आए माशाल्लाह, और बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छी बातें हुई। और नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह और भी बहुत मज़ा आने वाला, बहुत अच्छी बातें जानेंगे, हम भी जानेंगे, आप भी जानिएगा। और जिसको भी जो भी सवाल करना है तो वो हमें लाइन्स पे दिए हुए नंबर पर मैसेज करके सवाल कर सकते हैं। नेक्स्ट सेगमेंट पर आपके सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। जब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, देखते रहें फजीलत रमज़ान। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह।